Good morning, class 10. I hope you all are good and fine. So, children, let's continue our lesson Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So, students, you have read that Footprints Without Feet describes the story of a brilliant scientist, Griffin. He was a great scientist. He carried out many experiments to prove that human body could become invisible. In the end, Griffin, he drank certain drugs and his body became transparent. Children, Griffin, he was a lawless person. His landlord, he disliked him and tried to eject him. Eject means उसका जो landlord था, he did not like Griffin and he tried to eject him. वो उसको अपने घर से निकालना चाहता था. In revenge, Griffin, he set fire to his landlord's house. Now Griffin, he became a homeless wanderer without clothes. He had no money. He left footmarks as he walked. When Griffin he entered a big London store, he enjoyed the pleasure of food and clothes freely. He fitted himself out with warm clothes and had cold. Griffin he slept on a pile of quilts. He did not wake up until the assistants arrived next morning. So children, this we have read earlier. Now let's continue our lesson Footprints Without Feet. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. So, children, Griffin, he was very eager. वो बहुत eager थे, बहुत बेताब थे to leave the crowded place London. London कैसा place था? Crowded, बहुत रश था, बहुत crowd था वहाँ पे. तो वो उसको छोड़कर कहाँ जाना चाहते थे? Village of Iping. Iping is the name of village. वहाँ वो जाना चाहते थे. And he booked 2 rooms. उन्होंने 2 rooms को book भी करा लिए at the local inn Sarai में. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. Unusual कहते हैं not ordinary. और एक stranger, एक अजनबी का arrive होना, पहुंचना एक inn में, सराय में और winter में एक बहुत unusual event, unordinary घटना थी. As a stranger of such an uncommon appearance, set all tongues wagging. Set all tongues wagging means a matter of चर्चा. चर्चा का विषय बन गया, ठीक है ना, कि एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी का सराय में विंटर में आना एक चर्चा का विषय बन गया. सब लोग आपस में बातें करने लगे. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. और जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, है ना, उन्होंने हर एक एफर्ट किया, पूरी कोशिश की to be friendly with Griffin. But Griffin he had no desire to talk and told her. But Griffin he did not want to talk to Mrs. Hall. और Mrs. Hall से क्या कहा? My reason for coming to Iping is a desire for solitude. Solitude means loneliness, एकांत. He told to Mrs. Hall कि क्या कारण है कि मैं इस विंटर में विलेज ऑफ आइपिंग आया कि मैं लोनलीनेस चाहता हूँ. I do not wish to be disturbed in my work and I do not want anybody. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे. Besides, an accident has affected my face. और इसके अलावा एक एक्सीडेंट has affected my face. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric कहते हैं freaky, funky. और satisfied ये संतुष्ट होते हुए Mrs. Hall she was satisfied, वो satisfied होगी
कि उसका जो वो है कौन है, उसका जो गेस्ट है वो इसेंट्रिक है, वो सनकी है। एंड in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits, and इस कारण because Griffin ने एडवांस पेमेंट कर दिया था मिसेस हॉल को, तो मिसेस हॉल ने क्या किया, ग्रिफिन के जो स्ट्रेंज हैबिट थी उसको एक्सक्यूज, उसको माफ कर दिया। एंड इरिटेबली टेम्पर, और इरिटेबली कहते हैं एंगर, टेम्पर विद नेचर, और ग्रिफिन का जो नेचर था वो कैसा था, इरिटेबल, बहुत एंगर वाला उसका नेचर था। एंड मिसेस हॉल शी एक्सक्यूज ग्रिफिन्स इरिटेबल नेचर। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट that he had no more ready cash, but the stolen money, वो चुराए हुए पैसे जो ग्रिफिन ने चुराए थे वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, और वर्तमान में ग्रिफिन को सहमत होना पड़ा कि उसके पास पैसे नहीं है क्या करने के लिए, टू पे द रेंट, किराया देने के लिए। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन उसने ऐसा एक्ट किया, ऐसे बहाना किया ग्रिफिन ने कि जैसे कि एक चेक उसके पास एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट उसके पास चेक आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, अ क्यूरियस मीन्स अ वेरी स्ट्रेंज, एपिसोड मीन्स इवेंट, और उसके कुछ देरी बाद एक बहुत क्यूरियस एपिसोड, एक अजीब सी घटना घटी। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. And very early in the morning में जो clergyman था, clergyman कहते हैं one who pray in church, हाँ, जो चर्च में पूजा करता है, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत जल्दी जाग गए। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Creeping down स्टेयर्स, और क्लेजीमैन एंड हिज वाइफ वो नीचे गए सीढ़ियों से रेंगते हुए, और उन्होंने क्या सुना, चिंक ऑफ मनी, साउंड ऑफ मनी को सुना जो क्लेजीमैन के डेस्क टेबल से निकाले जा चुके थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्राफ फर्मली इन हिज हैंड, द क्लेजीमैन फ्लंज्ड ओपन द डोर। विदाउट, बिना किसी नॉइज के, ये बिना, विद अ पॉकर, पॉकर कहते हैं रॉड फॉर पॉकिंग फायर, ठीक है, आग को सुलगने के लिए जो रॉड होती है उसे पॉकर कहते हैं, और उसको ग्राफ मतलब टाइटली, टू होल्ड टाइटली, उसको टाइटली अपने हाथ में पकड़े हुए क्लर्जीमैन ने जोर से दरवाजे को खोला। सरेंडर, सरेंडर कहते हैं आत्मसमर्पण। देन टू हिज अमेजमेंट he realized that the room appeared to be empty. Then the clergyman and his wife both they were surprised, क्योंकि जो रूम था जिसमें ग्रिफिन he was living, वो रहता था, वो कैसा था, it was empty, वो बिल्कुल खाली था। And he and his wife looked under the desk and behind the curtains. clergyman की वाइफ ने डेस्क के टेबल के नीचे देखा और कर्टेन्स के पीछे भी देखा, and even up the chimney, और चिमनी के ऊपर भी देखा। There was not a sign of anybody, but there was nobody, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing, और फिर भी जो डेस्क था उसका ड्रॉर खुला हुआ था, and the housekeeping money was missing, और घर चलाने के जो पैसे थे वो गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, बहुत विचित्र घटना हो गई है, क्लर्जी में सारा दिन वो यही कहते रहे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन उस मॉर्निंग को उससे भी ज्यादा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घटी, जो मिसेस हॉल की फर्नीचर की जो दशा हुई, की जो कंडीशन हुई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and was surprised to see the scientist's door wide open. Landlord, the clergyman and his wife, उसके जो वाइफ थे वो अर्ली मॉर्निंग दे woke up, वो जाग गए, और उन्होंने क्या देखा कि साइंटिस्ट ग्रिफिन का जो दरवाजा है वो पूरा खुला हुआ है। Usually it was shut and locked, अक्सर
ग्रिफिन का जो डोर होता था वो शट, वो बंद होता था और लॉक होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, एंड ही वॉज फ्यूरियस एंड ही गॉट एंगर। मतलब ही गॉट एंगर, वो उससे गुस्सा हो जाता था इफ एनीवन एंटर्ड ग्रिफिन के रूम में, जब कोई एंटर करता था। They peeped around the door. The clergyman और उसकी वाइफ ने they looked around the room, सारे दरवाजे के आसपास देखा, saw nobody, लेकिन वहां पे कोई नहीं था, and decided to investigate. उन्होंने investigate करने की, जांच पड़ताल करने की, रूम की जांच पड़ताल करने की कोशिश की। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. और जो bedclothes, जो बेड में जो क्लोथ्स पड़े हुए थे वो बिल्कुल कोल्ड हो गए, ठंडे हो गए थे। इससे क्या शो हो रहा था, जो साइंटिस्ट था वो हैव बीन अप फॉर सम टाइम, वो कुछ देर पहले ही वो चला गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो क्लोथ्स और बैंडेजेस जिसको ग्रिफिन साइंटिस्ट हमेशा पहनता था वो बेड में पड़े हुए थे। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और all of a sudden अचानक Mrs. Hall ने sniff close मतलब sound of breathing, सांस लेने की आवाज अपने कानों के आसपास सुनी। A moment later the hat on the bedpost leapt up, और उसके कुछ देर के बाद ही बेड पे जो हैट रखा हुआ था, leapt up means it jumped up, वो जंप करने लगा, and dashed itself into her face, और मिसेस हॉल के फेस से टकराया। Then the bedroom chair became alive. फिर बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो भी alive हो गई, वो भी जीवित हो गई। Springing into the air, it charged straight at her. अब वो जंप करती हुई सीधे मिसेस हॉल से टकराई। As she and her husband turned away, और जैसे ही मिसेस हॉल उसके हस्बैंड दे टर्न्ड अवे इन टेरर, डर के मारे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर उसने क्या किया, टू शट द डोर विद अ बैंग, जोर से धड़ाम के साथ दरवाजा को बंद करा। Mrs. Hall almost fell down the stairs. She was convinced that the room was haunted by spirits. जो मिसेस हॉल थी वो गिर जाती स्टेयर सीढ़ियों पर। She was convinced, उसको पूरा विश्वास हो गया था कि उनके रूम में haunted by spirit means visited by ghosts, भूत प्रेत आ गए हैं, and that the stranger had somehow cause these to enter into her furniture. और उसने स्ट्रेंजर को ब्लेम किया, ग्रिफिन को ब्लेम किया कि वही इसका कारण है कि उन्होंने उसके फर्नीचर पे स्पिरिट को ला दिया। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. Moon means cried with pain. और मिसेस हॉल वो बोली मेरी बेचारी मदर इस चेयर में बैठा करती थी। The feeling among the neighbors was that the trouble was carried by witchcraft. Witchcraft कहते हैं black magic, जादू टोना। और जो neighbors थे उनमें क्या feeling थी कि जो trouble है, जो problem, जो संकट आ गई है, ये इसका कारण कौन है, witchcraft, जादू टोना है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, but witchcraft or not, लेकिन जब बर्गलरी का जो न्यूज था वो उसके बारे में पता चला तो इसका सारा शक, सारा सस्पिशन किस पे गया, साइंटिस्ट पे। उन्होंने क्या कहा कि इसमें साइंटिस्ट का हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और उनका जो सस्पिशन था, जो शक था, वो और गहरा हो गया जब ग्रिफिन ने कैश निकाला। Though he had admitted, जबकि उसने एडमिट, वो सहमत कर लिया था कि he had no money, उसके पास कोई मनी नहीं है। The village constable was secretly sent for means called for, और फिर village constable जो था पुलिसमैन, उसको बुलाया गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, और
किसका, कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो किसी तरह अपने empty खाली बेडरूम से वो आ गया था। I want to know what you have doing in my chair upstairs, and she asked the scientist कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरे रूम में तुम क्या कर रहे थे। And I want to know it is you came out of an empty room and how you entered a locked room, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम empty room में तुम किस प्रकार आए और तुमने एक लॉक रूम, एक बंद रूम पे तुमने कैसे एंटर किया। The scientist was always quick tempered. Quick temper में short temper, जो साइंटिस्ट था उसे बहुत जल्दी, he lose temper, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। Now he became furious, अब फिर वो गुस्सा आ गया उसे। You don't understand who or what I am. And the scientist ने क्या कहा कि तुम नहीं समझोगे कि मैं कौन और क्या हूँ। I will show you, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose, और अचानक और जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसने अपनी बैंडेजेस को निकाल दिया, अपनी विस्कर्स को निकाल दिया, स्पेक्स को निकाल दिया और नोज को भी निकाल दिया। It took him only a minute to do this, और ग्रिफिन को केवल 1 मिनट लगे ऐसा करने के लिए। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, and the horrified people जो वहाँ थे, डरे हुए जो पीपल थे बार पे, उन्होंने क्या देखा कि एक हेडलेस मैन, बिना सिर के आदमी को वो देख रहे हैं। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल का नाम जेफर था, and he now arrived, and he was also surprised to find that he had to arrest the man without head, और वो खुद सरप्राइज हो गया पुलिसमैन कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जो जिसका हेड है ही नहीं। But Jaffer was not easily prevented from doing his duty, लेकिन जो जेफर था वो आसानी से अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता था। If a magistrate's warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested. अगर एक मैजिस्ट्रेट का वारंट है, एक रिटन ऑर्डर है फ्रॉम द जज कि किसी आदमी को अरेस्ट करना है, तो उस आदमी को that person had to be arrested with or without head. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. And फिर वहां पे क्या हो गया, एक रिमार्केबल, एक बहुत अद्भुत सीन हो गया कि जब पुलिसमैन ने क्या किया, when he tried to get hold of ग्रिफिन, जब ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करने लगा तो वो और ज्यादा वो क्या हो गया, ग्रिफिन वो इनविजिबल हो गया। when he, जब उसने अपने गारमेंट 1 by 1 करके सारे फेंक दिए। Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone, और फाइनली ग्रिफिन ने अपनी एक शर्ट हवा में फेंकी एंड कांस्टेबल जो जेफर था उसने किसको देखा कि someone he could not see at all, कि वहां पे कोई एक ऐसा आदमी है जिसको बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। Some people tried to help the constable, कुछ लोगों ने कांस्टेबल जेफर की हेल्प करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows and seemed to come from nowhere, लेकिन उन सबको मुक्के लगने लगे, ब्लोज लगने लगे और वो मुक्के कहीं से आते हुए नजर दिखाई नहीं दिए। In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और in the end जो जेफर जो कांस्टेबल था, he was knocked, वो unconscious, वो फेंट होकर वो गिर गया जब उसने लास्ट अटेम्प्ट किया किसको पकड़ने के लिए, अनसीन साइंटिस्ट ग्रिफिन को पकड़ने के लिए उसने कोशिश की। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done, और वहां पे सब लोगों की एक्साइटेड क्राइज, चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि होल्ड ग्रिफिन, होल्ड इनविजिबल मैन, लेकिन ऐसा कहना आसान था करने से ज्यादा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को बिल्कुल आजाद कर दिया। And no one knew where to lay hands on him, और किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि
ग्रिफिन की साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाला जाए? ग्रिफिन वहां से बच निकलने में सक्सेस हुआ। So children, now come to the word meaning of the lesson. Solitude, loneliness. Eccentric, freaky. Freaky कहते हैं संकी. Furious, very angry. Slam, to shut with a bang. जोर से धड़म करके दरवाजे को बंद करना. Episode, event. Now children, your homework is read the lesson very carefully and do the all question answer, short as well as long. Thank you and have a nice day.